राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आज हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक डिजीज विच आर नॉट पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. They are the long duration and generally slow progressing. NCDs can mainly be categorized into four: CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ एंड डायबिटीज़। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो होता है वो होता है डायबिटिक मेलिसन इज अ आइसबर्ग डिजीज अफेक्टिंग अबाउट 150 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. दिस नंबर इज प्रेडिक्टेड टू डाउट बाय द ईयर 2025 with the greatest number of cases being expected in India. WHO has declared that India will become the diabetic capital of world by the year 2025. The number of diabetic person is expected to increase from 31 million in year 2000 to 79 million by 2030. Agent factor है underlying cause of diabetes is insulin deficiency which is absolute in IDDM and partially in NIDDM. The causes are pancreatic disorder, deformity in the formation of insulin, destruction of beta cell, decreased insulin sensitivity, genetic defect, autoimmunity. The overall effect of these mechanisms is reduced utilization of the glucose which lead to hypoglycemia accompanied by the glycosuria. Host factor है एज. डायबिटीज कैन occur in the age group. Type 1 is common among younger group between 30 and type 2 among the middle age and elderly. Sex है type 1 DM is common among men and type 2 among the women. Genetic factor है type 2 shows 90% genetic component whereas type 1 shows only 50%. The chances are greater in identical twin than in that of or binovular twin. The genetic marker of type 1 is associated with HLA, DR3 and DR4. Type 2 is not associated with HLA. Obesity is a risk factor for diabetes. Pregnancy, if a woman is predisposed to diabetes, she may develop DM in pregnancy. This is called gestational diabetes. The newborn of the DM in मतलब डायबिटिक मदर इज यूजुअली ओवरवर्ट एट द बर्थ, टेंड टू रिमेन ओबेस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड दस इज एट आर ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डीएम एट एन अर्ली एज. नेक्स्ट एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया, हाई सेचुरेटेड फैटी डाइट हो गया, लैक ऑफ डाइट 5% डाइट हो गया, माल न्यूट्रिशन इन अर्ली इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, एक्सेसिव इनटेक हो गया, अल्कोहल का, वायरल इन्फेक्शन है, रुबेला का, मम्स का एक्सेट्रा, डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स, केमिकल एजेंट्स लाइक एलॉक्सन, स्ट्रेप्टोजाइकिन, वेलकोर, सर्टेन बीन्स एक्सेट्रा destroy the beta cell. Social factors such as occupation, marital status, religion, economic status, education, urbanization, stress, lifestyle changes, etc. are also associated with the diabetes. DM, classification of DM according to WHO. DM, insulin independent diabetic mellitus, IDDM type 1 and NIDDM type 2, non-insulin dependent diabetic mellitus. Malnutrition related diabetes mellitus, MRDM. Other types secondary to pancreatic, hormonal drug induced genetic and other abnormalities, impaired glucose tolerance, IGT. GDM यानी कि गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस. इट इज़ अ मेटाबॉलिक क्लिनिकल फीचर है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. इनिशियली देयर इज नो स्पेसिफिक सिंड्रोम, लेटर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया, पॉलीडाइस्पेनिया, पॉलीपैगिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया. अल्टीमेटली देयर इज डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन अकर स्पेशली ब्रेन, आइज, किडनीज, नर्व्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग इन कॉम्प्लिकेशन लाइक एंथोसेफेली, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, current infection etc. leading to irreversible disability and death. स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, अब अगर बात करें डायबिटीज़ वैल्यू ऑफ द WHO के अकॉर्डिंग, तो डायबिटीज़ जो होती है वो फास्टिंग वैल्यू ग्रेटर देन वेनस की जो होगी 120 होनी चाहिए, लेसर देन 120. कैपिलरी की भी होनी चाहिए. वेनस की प्लाज्मा में कितनी होनी चाहिए, 140 तक होनी चाहिए, और वही वेनस और कैपिलरी दोनों में 140 होनी चाहिए. 2 आवर आफ्टर द ग्लूकोज लोड, मतलब कि हमने जब ग्लूकोज लिया है तो 180 होनी चाहिए तक होनी चाहिए. कैपिलरी में 200 तक होनी चाहिए, वेनस में 200 तक होनी चाहिए, कैपिलरी में भी 200 तक होनी चाहिए. IGT की बात करें तो फास्टिंग वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 120 से, दोनों में वेनस और कैपिलरी. होल ब्लड में प्लाज्मा की ग्रेटर देन होनी चाहिए 140. 2 आवर आफ्टर ग्लूकोज लोड के 120 से 180 होनी चाहिए. वही आपका ब्लड वेनस और कैपिलरी होल ब्लड में है, और प्लाज्मा में भी इतना ही 140 से 200 तक होनी चाहिए. जब
जबकि कैपिलरी में 160 से 220 तक होनी चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप ऑफ DM दे नीड द स्क्रीनिंग, एज ग्रेटर देन 40 years, फैमिली हिस्ट्री ऑफ DM, the obese, the women who have birth baby weighing more than 4.5 kg, the women who excessive weight gain during pregnancy, patient with premature atherosclerosis। प्रिवेंशन एंड केयर है। प्रिवेंशन क्या होना चाहिए? प्राइमरी प्रिवेंशन है कि पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी जो बच्चों की टारगेट होना चाहिए एडल्ट अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल, उनकी वजह से द एलिमिनेशन ऑफ हाई रिस्क इज डन बाय मास एजुकेशन, अवॉइडिंग स्वीट को अवॉइड करो, फूड फैटी फूड को, अल्कोहल को, OCPs को, स्टेरॉइड को, यूज ऑफ डेयरी फाइबर, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी वेट बाय द मॉडरेट एक्सरसाइज, जेनेटिक काउंसलिंग करो एक्सेट्रा। हाई रिस्क स्ट्रेटेजी में क्या है? चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, करेक्टिंग ऑफ ओबेसिटी है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट है, रेगुलर एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, अवॉइडिंग OCPs है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्टेरॉइड है, ओवर न्यूट्रिशन है। सेकेंडरी में क्या करो? अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डाइट सही से कर लें, प्रॉपर दे दें, डाइट एंड ओरल डायबिटिक ड्रग शुरू कर दे, NIDDM, इंसुलिन फॉर IDDM कर दे, सेल्फ केयर बाय पेशेंट और होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना शुरू कर दे। टेरिशरी प्रिवेंशन में क्या करोगे? डिसेबिलिटी लिमिटेशन, इंटेंसिव ट्रीटमेंट, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड। रिहेबिलिटेशन कर दें, डिसेबल्ड हो जाएगा, हैंडीकेप ड्यू टू द ब्लाइंडनेस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, रिहेबिलिटेट फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड फिजियोलॉजिकली, वोकेशनली। वहीं दूसरा अब जो आ रहा है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है। ओबेसिटी इज प्रेवलेंट इन बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड अफेक्टिंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट, हैज बीन एस्टिमेटेड टू अफेक्ट 20 से 40% ऑफ एडल्ट एंड 10 से 20% ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो ओबेसिटी अष्टर इंद्रिय पुरुष में अति स्थूल पुरुष निंदनीय है। रिस्क फैक्टर है मॉडिफाइड फिजिकल इनएक्टिविटी और सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ओवर न्यूट्रिशन हो जाए, अल्कोहलिज्म हो, यूज ऑफ OPC, इंसुलिन, बीटा ब्लॉकर्स एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लीड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, द पर्सन में ओवर ईट इन दिस सिचुएशन इन 5% ऑफ केसेस। द मेटाबॉलिक ओबेसिटी एग्जाम्पल Cushing syndrome, हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एक्सेट्रा। होस्ट फैक्टर क्या है? नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है। एज होता है कि ओबेसिटी किसी भी एज में अकर हो जाती है, कोई भी किसी भी सेक्स में अकर हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर है, इफ द बोथ पॉलीजमी एंड द मेजर जीन डिफेक्ट्स ओबेसिटी बिफोर देयरफॉर टेंड टू रन अ फैमिली। ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द लिविंग है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से खान पान भी बदल रहा है, तो उसकी वजह से होता है। बर्तनों का जो यूज़ है, LPG का यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से वॉशिंग क्लोथ्स नहीं करते हैं लोग, वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, मतलब पोछा नहीं लगाते, इस वजह से ऑटोमेटिक डोर्स हैं। TV वॉचिंग है, तो लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ओबेसिटी पे। हैज़ार्ड ऑफ ओबेसिटी है, ग्रेटली इंक्रीज है NIDDM, मॉडरेटली इंक्रीज है CHD और स्लाइटली इंक्रीज है कैंसर, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, एंडोमेट्रियल कैंसर और कोलर कैंसर, ये तीनों ही कैंसर ज़्यादातर लेडीज़ में देखने के लिए मिलते हैं। ग्रेटली इंक्रीज जो है गॉल ब्लैडर डिक्रीज है, मॉडरेटली जो है वो इंक्रीज है वो हाइपरटेंशन की वजह से, और स्लाइटली इंक्रीज रिप्रोडक्टिव हार्मोन एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। ग्रेटली इंक्रीज में अब डिस्प्लेगिया डेमिया आ गया, जिसमें कि मॉडरेटली इंक्रीज में ऑस्ट्रोपैरासिस ऑर्थोराइटिस आ जाएगा, नी का आ जाएगा। स्लाइटली इंक्रीज में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आ जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्रेटली इंक्रीज हाइपर यूकैरिमिया एंड गाउट मॉडरेटली इंक्रीज और स्लाइटली इंक्रीज में आएगा अब इम्पेयर्ड फर्टिलिटी। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो ब्रेथलेसनेस आएगा, ग्रेटली इंक्रीज में, स्लाइटली इंक्रीज में लो बैक पेन, मॉडरेटली इंक्रीज में कुछ नहीं आएगा। स्लीप एपोनिया आएगा, ग्रेटली इंक्रीज में, मॉडरेटली इंक्रीज में कुछ नहीं आएगा, जबकि स्लाइटली इंक्रीज में इंक्रीज रिस्क ऑफ एनेस्थीसियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटल डिफेक्ट एसोसिएटेड विद मॉडरेट मेटरनल ओबेसिटी। असेसमेंट क्या कैसे करोगे ओबेसिटी का? ओबेसिटी एक ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ है, एडिपोज टिश्यू की एनलार्जमेंट हो जाते हैं जिसमें, या फिर फैट सेल्स का जो साइज होता है उसकी वजह से hypertrophy obesity or an increase in fat cell number, hyperplastic obesity or a combination of both. Obesity is expressed by 4 indicator: corpulent index CI, actual body weight of individual ABW, expected body weight EBW. ठीक है। CI of 1.2 or more is considered as obesity. EBW can be calculated by 2 methods. पहला है ब्रोकास इंडेक्स है, सेकेंड है लॉकरेंट्स फॉर्मूला। ब्रोकास इंडेक्स जो होता है हाइट इन सेंटीमीटर -100 करोगे EBW आ जाएगा।
लॉरेंट्स फार्मूले में EBW मेल्स के लिए जो निकालेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 माइनस, उसमें भी माइनस आएगा, हाइट इन सेंटीमीटर्स -150 अपॉन होल 4, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, EBW इन फीमेल्स में पूरा सेम है, बस जहाँ 4 था वहाँ 2 हो जाएगा। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स और क्वार्टलेंस इंडेक्स को वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओबेसिटी इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू BMI एज फॉलोज: अंडरवेट greater than 18.5, नॉर्मल रेंज 18.5 to 24.95, ओवरवेट greater than 25, प्री ओबेस 25 से 29 यानी कि 30 मान लो। ओबेस क्लासिफिकेशन बस 30 से 34.9, ओबेस क्लासिफिकेशन 2 35 से 39.9, और ओबेस क्लास थर्ड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 40 है। स्किन फोल्ड थिकनेस, द मेजरमेंट पे बी टेकन एट द 4 साइड्स ऑफ स्किन कैपिलरीज, द मिड ट्राइसेप, बाइसेप, सब स्कैपुलर एंड सब leg region. In normal person, the sum of the measurement should be less than 40 mm in boys and 50 mm in girls. Waist circumference, the risk of metabolic complication of obesity is observed to be the high among men with the waist circumference greater than 102 centimeter and among women in greater than 88 centimeters. Waist hip ratio WHR of more than 1 in men and 0.85 in women indicate abdominal fat accumulation. Prevention and control difficult है कंट्रोल करना ओबेसिटी को, कॉज बाय नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर लाइक एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर कुछ भी नहीं पता है। द प्रिवेंटिव मेजर है शुड स्टार्ट अर्ली इन चाइल्डहुड बिकॉज वंस ओबेसिटी इज डेवलप्ड इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट. द अप्रोच शुड बी मेंटेनिंग वेट within the healthy range BMI 18.5 to 24.9. The strategies are dietary changes, that is restriction of fat and sugars, refined food, use of fiber diet, fruits and vegetables, increased physical activity of regular exercise, walking, yoga, gardening, dancing, cycling, swimming, etc. Health education about hazard of obesity and its prevention. Surgical treatment, example gastric bypass हो जाए, gastric plasty हो जाए, jaw wearing हो जाए to eliminate the eating of solid food. Have all the been tried with limited success. Liposuction suction is a temporary method for reduction of fat in particular area. Hypertension जो आजकल नॉर्मली देखने के लिए मिलती है, जिसे हम HTN कहते हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम है, कम्युनिस्ट होता है, इसकी वजह से CVS डिसऑर्डर बहुत देखने के लिए मिलते हैं. CVSD it is one of the major factor for CVS mortality, which accounts for 20 to 25% of all the deaths in India. It is estimated range from 4 to 8 and 10 to in the increasing due to the changes in lifestyle. HTN is a iceberg disease and constitute the tip of the iceberg. The submerged portion correspond to the undiagnosed case, asymptomatic case or adequately treated case, which are all represented with रूल ऑफ हाफ्स द होल कम्युनिटी. 1 के लिए क्या आता है, सेकंड के लिए हम कहते हैं नॉर्मोटेंसिव सब्जेक्ट, थर्ड के लिए कहते हैं हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट, फोर्थ के लिए कहते हैं अनडाइग्नोस्ड HTN सब्जेक्ट, फिफ्थ के लिए कहते हैं डायग्नोस्ड HTN सब्जेक्ट, सिक्स के लिए डायग्नोस्ड बट अनट्रीटेड, सेवन्थ के लिए डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड, एट्थ के लिए इनएडिक्वेटली ट्रीटेड एंड नाइन्थ के लिए इनएडिक्वेटली ट्रीटेड. फर्स्ट रूल क्या है, अबाउट हाफ ऑफ द केसेज ऑफ HTN आर अवेयर ऑफ देयर कंडीशन. सेकंड रूल क्या है, अबाउट half of those who are aware are under treatment. Third क्या है, about half of those which are under treatment are received adequate treatment. रूल रिस्क फैक्टर फॉर HTN, नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर. एज, कोई भी एक पर्टिकुलर एज नहीं है, किसी भी जब हाई BP होता है तो किसी भी एज में हो सकता है, पर ये नॉर्मली जो है वो अब अबव 40 ईयर्स के लिए देखने के लिए मिलता है. सेक्स के लिए कोई भी, इसमें तो BP का कोई पता ही नहीं है कि किस में कब बढ़ जाए, ठीक है. जेनेटिक फैक्टर है, तो जेनेटिक फैक्टर में अ पॉलीजेनेटिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन HTN बट नो जेनेटिक मार्कर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, क्योंकि ये तो BP से रिलेटेड होता है. कभी कभी पेरेंट्स को नहीं होता BP लेकिन बच्चों को हो जाता है, इसलिए ये जेनेटिक फैक्टर है. एथेंटिक studies has shown higher BP level among black people than among white. Modified risk factors, occupation involve stress predispose for the development of HTN, example doctor, lawyers, engineers, business executive etc. इसीलिए कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से BP बढ़ जाता है. Physical inactivity, sedentary lifestyle, socioeconomic status. HTN is higher in people of higher socioeconomic status due to the change in the lifestyle. Disease, DM, obesity etc. डाइट में higher salt intake in the daily diet, जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनको होता है, इसीलिए सेंधा नमक खाना चाहिए. Food rich in saturated food and sweet, lack of or dietary fiber in diet, high alcohol intake, use of OCP. Classification of
एच टी एन एक ऐसी कंडीशन है कैरेक्टराइज होती है इंक्रीज इन द आर्टिशियल ब्लड प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल। डब्ल्यू एच ओ इज गिविंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एच टी एन। नॉर्मली जो है वो ग्रेटर है 130, तो सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 130 होना चाहिए। डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 85 mmHg होना चाहिए। हाई नॉर्मल कितना होता है 130 से 139 तक होता है सिस्टोलिक MMHg में। डायस्टोलिक 85 to 89 होता है mmHg में। हाइपरटेंशन में स्टेज 1 माइल्ड जो होती है 140 से 160 तक देखने के लिए मिलती है सिस्टोलिक में, और डायस्टोलिक में 90 से 99 तक देखने के लिए मिलती है। स्टेज 2 में मॉडरेट में 160 से 180 देखने के लिए मिलती है। डायस्टोलिक में 100 से 109 देखने के लिए मिलती है। स्टेज 3 जो सीवियर है, जिनका बीपी हमेशा 180 के ऊपर रहता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जिनका बीपी हमेशा ग्रेटर रहता है 110 से। ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड द मोस्ट कन्वीनियंट symptoms is early morning occipital pulsating headache. It is often associated with the stiffness of neck, awaking the patient from sleep and give relief after the vomiting. Other features are dizziness, palpitation, easy fatigue, epistaxis, blurring of vision, breathlessness, and personality changes. Hypertensive patients are grouped in 3 categories: those who do not have any symptoms but are detected during the routine checkup, those who come with specific complaint explained above, those who come with complication on the basis of organ damage complication. The HTN is divided in 3 stages as follows: stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 1 में no manifestation of organic चेंज है। स्टेज 2 में LVH है, नरोइंग ऑफ रेटिनल आर्टरीज, माइक्रो एल्ब्यूनेरिया, प्रोटोन्यूरिया, आर्थियोस्क्लेरोटिक प्लेगिया इन अरोटा, काइरोटिड इलियक ऑफ femoral arteries है। स्टेज 3 एंजिना MI, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, TIA, हाइपरटेंसिव एंथोसेफेली, वेस्कुलर डिमेंशिया, पेपिलर ओडेमा, रेटिनल हेमरेज, रीनल फेलियर, डिसेक्टिंग एन्यूरोसिस, सिस्टोमेटिक आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज। प्रिवेंशन है HTN की, प्राइमरी है, पॉपुलेटरी, हाई रिस्क है। ठीक है। प्राइमरी में डिवाइड करा है 2 में, पॉपुलेटरी स्ट्रेटजी और हाई रिस्क स्ट्रेटजी। ठीक है। सेकेंडरी में डिवाइड किया है, कोई डिवाइडेशन नहीं है उसमें, पॉइंट बताए गए हैं। टर्शरी है उसके बाद। ठीक है। 3 तरीके के डिवाइड कर दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी को 2 में डिवाइड किया गया है, पॉपुलेशन और हाई रिस्क स्ट्रेटजी। प्राइमरी में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर बाय 2 अप्रोचेस: पॉपुलेशन स्ट्रेटजी एज वेल हाई रिस्क स्ट्रेटजी। Population strategy, it is directed at the whole population irrespective of individual risk level. The interventions are nutrition, exercise, yoga, meditation, reduction of stress and smoking, health education to public regarding risk factor and preventing self-care by regular BP monitoring. High risk strategy is direct at the high risk group. The intervention mentioned above is direct to the obese, alcoholism, age above 50 years, diabetics, sedentary workers, pregnant mothers, individual with family history etc. सेकेंडरी जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ HTN, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ड्रग टू कंट्रोल द BP, रेगुलर फॉलोअप एंड ड्रग कॉम्प्लाइंस। टर्शरी में क्या है, डिसेबिलिटी रिमेडिएशन है बाय गिविंग इंटेंस ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन गिवन फॉर द हैंडीकैप ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ HTN सच एज हेमीप्लेगिया, फॉलोइंग स्ट्रोक, blindness due to the retinopathy etc. Next है CHD, मतलब coronary heart disease, also known as IHD, ischemic heart disease. Distribution of CHD क्या है, is leading to the cause of death in all the developing countries, accounting for 25 to 30% of total death in the developing countries like India. There has been an increase trend in the incidence of CHD because of the changes in the lifestyle and the behavior pattern of the people. CHD counts for nearly 15% of all that. Therefore CHD is considered as modern epidemic. The non-modified risk factor age incidence is maximum between 50 to 60 years. Sex है common among men. Family history क्या है, CHD has been seen to run in families. Genetic factors play an indirect role by then determining the total cholesterol and LDL level. Modified risk factor है cigarette smoking. Major risk factor है CO2 इंड्यूस करती है, आर्थोजेनेसिस, निकोटीन स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है, एड्रेनल BP इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज करता है मायोकार्डियल एंड ऑक्सीजन डिमांड और डिक्रीज करता है HDL लेवल। हायर सीरम
cholesterol, higher LDL, VDL, low HDL, and ratio of LDL to HDL more than 5 increases the risk of CHD. HT third है HTN, diabetes, DM, and obesity increase the risk factor of CHD. Lack of exercise, type A personality, etc. increase the risk. Use of OCPs increase level of estrogen favor the CHD is common in heavy drinker. Soft water is another risk factor. Chronic exposure to noise over 110 dB increase from the cholesterol level and thus the risk of CHD. मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर हो गया। यहाँ पे दूसरा रिस्क फैक्टर है, इसमें हायर सीरम कोलेस्ट्रॉल है, हायर VLDL, VDL, लो HDL, रेशियो ऑफ LDL टू HDL मोर देन 5 इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ CHD, HT and diabetes, DM and obesity increase the risk of CHD. Lack of exercise, type A personality, etc. increase the risk. Use of OCP increase level of estrogen favor the CHD is common in heavy drinkers. Soft water is another risk factor. Next है chronic exposure to noise over 110 dB increases serum cholesterol level and thus the risk of CHD. CHD is impairment of heart function due to the inadequate blood flow to the heart compared to its need, caused by the obstructive change in the coronary circulation to the heart. CHD may manifest itself in many presentation: angina pectoris of the heart, myocardial infarction, irregularities of the heart, cardiac failure, sudden death. Prevention of CHD पॉपुलेशन स्टडीज हमने पढ़ ली थी। उसके बाद रिस्क फैक्ट नहीं, पॉपुलेशन स्ट्रेटजी जो डायरेक्ट ओवर द होल पॉपुलेशन, फोकसिंग ओनली ऑन द टू कंट्रोल द रिस्क फैक्टर. द इंटरवेंशन आर एजुकेशन एक्टिविटीज, लेजिस्लेटिव मेजर एक्सेट्रा टू अचीव स्मोक फ्री सोसाइटी, लो कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट्स. द एवरेज इंटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल शुड बी ग्रेटर दैन 300 mg पर डे. द कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज. लो सॉल्ट लेना चाहिए, लो एल्कोहल इंटेक करना चाहिए. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट कंट्रोल टू प्रिवेंट HTN and obesity. High risk strategy है. At risk group can be identified by the screening test such as recording BP, estimation of serum cholesterol. High risk of higher history of smoking, strong family history of CHD and history of taking OCPs among women, and estimation of fasting blood sugar to detect the diabetic. The patient identified are advised to avoid risk factor. Secondary prevention consists of prevention of CHD by cessation of exposure to risk factor. RHD, rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease, it is present all over the world, especially in the developing countries. The Group A, beta hematologic streptococci, host and the environmental factor. It is a typically disease of childhood and adolescence, 5 to 15 years. Sex both में देखने के लिए मिलता है. Socio-economic status linked to poverty, overcrowding, poor housing, inadequate health services, etc. Next, a clinical feature, RF and RH cannot be separated epidemiologically. RF is a febrile disease affecting the connective tissue, partially in the heart and joint, initiated by the infection of the throat. RF often lead to the RHD. The feature are fever, polyarthritis, cardiac nodal, brain involvement, scan. अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो जोन्स क्राइटेरिया होता है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ 2 मेजर और 2 माइनर एंड 2 माइनर मैनिफेस्टेशन टू प्लस एविडेंस ऑफ अ प्रेसिडिंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. मेजर मैनिफेस्टेशन कार्डियाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, एरिथ्रेमा मार्गिनेस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल. माइनर मैनिफेस्टेशन में क्लिनिकल है, लेबोरेटरी क्लिनिकल में फीवर, पॉलीआर्थरेलिया है, लेबोरेटरी में एलिवेटेड ESR और साइट काउंट है. प्रिवेंशन में हम प्राइमरी प्रिवेंशन में और सेकेंडरी प्रिवेंशन है, नॉन मेडिकल मेजर है, वैक्यूलेशन है. प्राइमरी में हम आइडेंटिफिकेशन है ऑल पेशेंट्स का विद स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन बाय थ्रोट स्वैब एंड कल्चर, देन ट्रीटमेंट बाय सिंगल IM इन्फेक्शन बाय बेंजाथीन पेनिसिलिन, मिलियन यूनिट्स ऑफ फॉर एडल्ट एंड 6 लाख यूनिट फॉर चिल्ड्रन, और ओरल पेनिसिलिन for 10 days. The method is simple theoretical, but practically it is very difficult. Secondary care prevention of occurrence, identify the cases and giving them IM injection of benzathilin penicillin. 1.2 million units for adult and 6 lakh units for children at interval of 3 weeks up to 5 years or until the child reaches 18 years. For patient with carditis, the treatment should be continued for 10 years after the last attack or at least until 25 years of age, whichever is longer. No medical measure
improving living conditions and breaking the poverty cycle. Evaluation by taking sample of school children in the 6 to 14 years of age groups at every 5-year interval. Last one is cancer. Cancer constitutes the second leading cause of death, most of the CHD in the developing countries, and the fourth cause is in developing countries. At any given point of time, there are about 10 million people suffering from one or other type of cancer in the world, and more than 6 million have been dying every year due to the cancer. In India, it is estimated to 2.2 to 2.5 million cases existing at every given point of time, with about 7 lakh new cases being added every year, killing nearly 3 lakh of people every year only due to the cancer. Different types of cancer are occurring in different parts of the world. Like in Japan, stomach cancer is common, liver cancer in Central Africa, colon and rectum cancer in USA, skin cancer in Australia, respiratory tract oropharyngeal, breast cancer and cervix cancer in India. एजेंट फैक्टर हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, जैसे हीट भी हो सकती है या फिर रिवर्स स्मोकिंग हो गया। ओरल कैंसर के लिए खंगारी कैंसर कहते हैं इसे हम। सोलर रेडिएशन बेसल सेल कार्सिनोमा है। आयनाइजेशन रेडिएशन ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन धोती कैंसर जिसे हम कहते हैं एनालिन, केमिकल्स की वजह से यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, प्लूरल मेसोथेलियम एस्पेक्टर डाई की वजह से होता है। बेंजोल की वजह से ल्यूकेमिया होता है। निकल क्रोमेट की वजह से लंग कैंसर होता है। कोल तार की वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। साइटोमेगेलो वायरस की वजह से कैपोसिस सारकोमा होता है। एपिसेक्टिन बार वायरस की वजह से नैरोफैरिंजियल कार्सिनोमा होता है। बर्किल्स लिम्फोमा होता है। ह्यूमन पैपिलोनियम वायरस की वजह से कैंसर सर्विक्स होता है। ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस की वजह से ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस कैंसर होता है। एस्पेरेगस फ्लैगिस की वजह से लिवर कैंसर होता है। हर्पीस वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्मोक्ड फिश की वजह से फिश की वजह से स्टमक कैंसर होता है। बीफ की वजह से बॉवल कैंसर होता है। हाई फैट इंटेक की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। और कॉलन कैंसर भी इसी की वजह से होता है। अल्कोहल की वजह से ओइसोफेगस से लिवर कैंसर हो जाता है। सोशल इकोनॉमिकल, टोबैको, स्मोकिंग, ओवर यूज ऑफ एस्ट्रोजन ड्रग, सनलाइट, इनकी वजह से कैंसर ऑफ लैरिंग्स, लंग्स, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस, मैलिग्नेंट मेलानोमा। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर। एज है। यूजुअली कैंसर अकर अमंग एल्डरली पीपल, सम कैंसर एक्सिबिट अ बायनॉर्मल एज कर्व बीइंग कॉमन इन यंग एडल्ट एंड एल्डरली पर्सन। एग्जांपल ल्यूकेमिया, Hodgkin's disease and kidney cancer. The age of cancer cervix is related to age at marriage. Earlier the marriage, earlier is development of this cancer. Sex cancer may be frequent among men than among women, but जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थायराइड और गॉल ब्लैडर का होता है वो किस में होता है, वुमेन्स पे ज़्यादा जल्दी होता है। एथेनिसिटी में क्या है, ब्लैक स्किन रेशेस होते हैं एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। मंगोलर्स आर ऑल मोर लाइकली टू डेवलप द ल्यूकेमिया देन द नॉर्मल चिल्ड्रन। जेनेटिक फैक्टर ट्रांसलोकेशन हो जाता है। लॉन्ग आर्म का क्रोमोसोम का 9 and 22 सेन इन द क्रोनिक माइलर ल्यूकेमिया डिफेक्टिव जीन लोकेटेड इन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 13 प्रोड्यूस्ड बाय टू द familial retinoblastosis. Occupation is certain type of cancer occur in certain type of industries due to the prolonged exposure to carcinogens. They are कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल कैंसर, ठीक है। स्किन कैंसर कार्सिनोमा क्या है, कोल तार की वजह से, अब ये ऑयल डाइज इनकी वजह से हो जाता है, ठीक है। लंग कैंसर क्या होता है, CRNIBEU टबैको एस्टिबोसिस की वजह से होता है। ब्लैडर कैंसर की वजह से होता है बेंजेथाइन एनिलीन बीटा नेक्सेथलाइन एलामाइन एरोमेटिक एमाइंस की वजह से होता है। ल्यूकेमिया आयोनाइजिंग रेडिएशन, बेंजोल रेडियोएक्टिव आइसोटोप एस्टेब्लिश हुए। हैबिट में क्या है, स्पेसिफिक कैंसर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक हैबिट्स एंड कस्टम, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, सनबाथ, टोबैको च्यूइंग, एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एयर पॉल्यूशन की वजह से, ऑटोमोबाइल की वजह से हमें लंग कैंसर हो जाता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द स्ट्रेप्टोकोकस ड्यू टू द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड द एमिशन ऑफ एग्जॉस्टन ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट लीड टू द स्किन कैंसर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में प्राइमरी है सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या करोगे, हेल्थ प्रमोशन, हमें कैंसर के बारे में बताना चाहिए। स्मोकिंग, एल्कोहल, इन सबको बताना चाहिए। ये खाने से क्या मतलब, पीने और खाने से क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। इनकी एजुकेशन देनी चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए लेग्यूम्स का, ग्रीन्स का, फ्रूट्स का। टू अवॉइड फैट फास्ट फूड ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। क्लरिन फूड अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है।
पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स को अपना और ध्यान रखना चाहिए। वुमेन को अपने ब्रेस्ट के बारे में एजुकेट करना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए एयर पॉल्यूशन का बाय वेरियस मेजर्स सच एज कंटेमिनेशन, डाइल्यूशन, रिप्लेसमेंट और रेगुलेशन। रेगुलेशन कंट्रोल करता है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, टोबैको, कार्सिनोमा, फूड, एयर पॉल्यूशन को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अवॉइडेंस ऑफ कार्सिनोमा, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी टू प्रिवेंट liver cancer, treatment of pre-cancer escalation at the risk of industrial worker should be a protective device, example respirator, lead apron, lead gloves, etc. ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, मेड बाय क्लिनिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, स्क्रीनिंग ऑफ दोज हु कम विद द वार्निंग सिग्नल्स एंड दोज एट risk is done. Some specific tests are done for the specific cancer, example exofluorid cytology to detect CA cancer, मतलब सर्विक्स कैंसर जो होता है उसको, ठीक है। मैमोग्राफी टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। उसके बाद एंडोस्कोपी टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ स्टमक, कोलन एंड अदर हॉलो वेस्ट्रा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है। प्रिवेंशन क्या है, टर्शरी प्रिवेंशन है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन बाय गिविंग इंटेंसिव ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ further disability. Rehabilitation is given for those who have undergone surgery such as amputation, flag, colostomy, mastectomy, etc. They are rehabilitation with the prosthesis and training later placed in suitable jobs. यहाँ पे कंप्लीट हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एपिडर्मियोलॉजी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है।